बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया है। Livelihood. We have an opportunity to profoundly change the existing farming paradigm that ensures on sustainable basis enhanced productivity and has the potential to attract investment and create a multiplier effect on the rest of the economy. I congratulate the Prime Minister on the launch of Green Pakistan initiative, and we feel proud to be part of this flagship event in collaboration with other stakeholders. Ladies and gentlemen, we have endeavored to make it an all-inclusive seminar in both participation and dialogue on the stage today. Today's audience, as you can see, represents all segments of the society, all provinces, small farmers to large, legislators, businessmen, bankers, students, multilateral agencies, foreign investors, and the diplomats. Pakistan is blessed with a diverse climate, large swaths of cultivable land, which is, we estimate, around 8 million acres lying unutilized, extensive irrigation network, untapped underground sweet and river water, cultivable deserts, quality research institutes that we have, brilliant scientists, engineers, and committed entrepreneurs. Let us bring them together, creating synergies. There is a need to craft a comprehensive strategy within an efficient policy framework, together with an effective roadmap, and take reform actions that are potentially of high impact and politically correct. The overall objective is to reform the agriculture into a dynamic, competitive, efficient, and a climate-smart sector, and to reposition our agriculture as an engine of growth that remains sustainable. Therefore, there is need to design holistic approaches to cover the food insecure population in both rural and urban areas by using smart technologies. Strengthen the value chain in the agri-industry, improve the productivity and profitability of agriculture and livestock producers through better production and marketing technologies. Create a new rural employment opportunities, address weaknesses in the credit system, improve the management of both domestic markets and international trade, improve the effectiveness of the government expenditures, including research. इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी के हवाले से सेमिनार का आगाज़ हो गया है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इस सेमिनार का आगाज़ हुआ है और हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से मुआशी बहाली के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया है। अब आपको बताएं कि दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। भारत ने औज बैराज से 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान में जसड़ के मकाम पर 65,000 क्यूसिक पानी पहुंचने का इम्कान है। लाहौर के करीब दरियाए रावी में ताहाल हालात मामूल पर हैं। खुश्क अरसे के मुकाबले पानी की मिकदार ज्यादा है। शाहदरा के करीब दरियाए रावी के पाट में आर्जी झुग्गियां भी बदस्तूर कायम हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। भारत ने औज बैराज से 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है। इस बारे मजीद तफसील देंगे जाहिद आबिद। जाहिद, अपडेट कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में सबसे ज़्यादा जिस पर शायद तवज्जो दी जाएगी वो पानी है और पानी ज़ख़ीरा करना है। और ये पानी इस वक्त हमें दरियाओं में नज़र आ रहा है, जो कि आम तौर पर दरिया खुश्क नज़र आते हैं, लेकिन बारिशों के बायस
इसमें दरियाओं में पानी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और ख़ास तौर पर अब भारत की जानब से भी पानी छोड़ा गया है तकरीबन 1,85,000 क्यूसेक दरिया रावी में, जो कि जस्सड़ के मुकाम पर तकरीबन 65,000 क्यूसेक फुट तक पहुंचेगा और रावी और शादरा तक पहुंचते हुए इससे भी कम हो जाएगा। इसलिए कोई अभी ताहाल बहुत ज़्यादा ख़तरा नज़र नहीं आ रहा शादरा और इस गिरदोनवा के जो इलाके हैं इस पानी से, बल्कि ये पानी किसी हद तक बेहतर ख्याल किया जाएगा इस दरिया के लिए और यहाँ के इर्द गिर्द की ज़मीन के लिए। हमारे कैमरामैन फैसल रहमान ताज़ा तरीन सूरत दिखाते हैं आपको दरिया रावी की। ये दरिया रावी आम दिनों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर सूरत नज़र आ रही है। यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है जिससे थोड़ी सी ज़िंदगी की रमक महसूस हो रही है इस दरिया में। ताहम इसके जो लेफ़्ट साइड पर जो इसके झुग्गियाँ आर्जी तौर पर बनी होती हैं वो ताहाल मौजूद हैं और उनको यहाँ से ना हटाया गया और ना ही ये खुद हटे हैं। और क्योंकि अभी तक जो पानी यहाँ तक पहुँचने का कहा जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा जाहिर नहीं किया जा रहा। अगर भारत से मजीद पानी छोड़ा जाता है तो उसके बाद यकीनन हालात कुछ पेचीदा हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक हालात मामूल के मुताबिक नज़र आ रहे हैं। ताहम रेस्क्यू इदारों की जानब से कुछ कार्रवाई यहाँ पर की गई है। उनके कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि अगर अचानक भी ऐसी सूरत पैदा होती है तो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। ताहम इस वक्त दरिया रावी में एक ऐसी सूरत है जो कि आम तौर पर किसी भी दरिया के लिए बेहतर ख्याल किया जाता है, लेकिन अभी भी दरिया के बाज़ हिस्से बिल्कुल इसके साथ जो शादरा की तरफ अगर हम देखें तो वो हमें खाली नज़र आ रहा है। वहाँ पर तहानी काफ़ी दूर है आबादी से, लेकिन जिस वक्त सैलाब आता है तो यकीनन ये हिस्से भी मुतासर होते हैं। ताहम इस वक्त तक जो मौसमी पेशगोई की जा रही है और जो आबी माहिरीन की जानब से बताया जा रहा है कि भारत की जानब से अगर मजीद को बहुत बड़ा रेला नहीं छोड़ा जाता, जैसा कि 1,85,000 क्यूसेक ताहाल छोड़ा गया है, तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। ताहम इस वक्त जो हालात हैं वो ज़राअत के लिए भी बेहतर है। ये अभी तक मुल्हका आबादी को ज़्यादा खतरा नहीं बताया जा रहा। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। खबर है कि शकरगढ़ दरिया रावी के करीबी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। अब तक 301 अफराद को पानी से निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचा दिया गया है। डीसी नारोवाल ने यह कहा, जबकि 5 खवातीन समेत 60 अफराद को गांव चक जंधड़ शकरगढ़ के करीब पानी से रेस्क्यू किया गया। धाड़ेवाल से 51 लोगों को बाहिफाजत दरिया के दूसरे किनारे से रेस्क्यू किया गया है। झन मान सिंह और पीर कंडियाला से 186 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दरिया रावी के करीबी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। कसूर में दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट से तजावुज कर गई। सतलुज में भारतीय आबी जारहियत के एक दिन बाद 4 फुट तक पानी की सतह बढ़ गई। गंडा सिंह वाला के मकाम पर 18,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव है, जबकि सतलुज में पानी के बहाव में तेजी के बायस रेस्क्यू कैंप लगाने का सिलसिला भी जारी है। कसूर में दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट से तजावुज कर गई। सतलुज में भारतीय आबी जारहियत के एक दिन बाद 4 फुट तक पानी की सतह बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत क्यों नहीं हुई? वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया, मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है। ताहम दोस्त ममालिक और IMF से मदद के बाद मुल्की कर्जों का बोझ भी अब कम होना शुरू हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कौम से उम्मीद है कि दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में नहीं डालेंगे। मुल्क को तबाही से हमकिनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। 9 मई से पहले PTI के लॉन्ग मार्च में अवाम नहीं निकली। चेयरमैन PTI CPAC और सरमायाकारी रोकता था। इसके कौल और फेल में तजाद है। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही दुनिया चेयरमैन PTI के हक में बात कर रही है। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मशावरत नहीं की गई। ये सवाल मेरे जहन में है। JUI अपोजिशन को लेकर चली है। जब हमने ये कहा कि असम्बली जाली है तो हमें हल्फ नहीं उठाना चाहिए था।
चेयरमैन PTI को राह और मोसाद की सपोर्ट हासिल थी और आज भी हासिल है। इस सूबे में PTI हमारे लिए कोई मसला नहीं दबोच कर रख देंगे। इन्होंने आलमी सियासत के हवाले से कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी दबाव से निकलना होगा। बिजली सार्फिन के लिए एक और परेशानी है। बिजली ₹1.24 फी यूनिट महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। इतलाक कब से होने जा रहा है, जीशान यूसुफ इस बारे तफसील देंगे। जीशान, अपडेट कीजिए। देखिए, एक जानिब तो बिजली का शॉर्टफॉल होता है और सारिफीन को सामना होता है तवील लोड शेडिंग का और बिजली की गैर एलानिया बंदिश का, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कीमतों में आए रोज इजाफा होता है। अभी से MI एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया जो कि ₹1.24 और इसके इतलाक से सारिफीन पर 46 अरब और 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये जो इजाफा ये MI एडजस्टमेंट की मद में किया गया और इसका इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। दूसरी जानिब जो है IMF की शराइत पर बेस टैरिफ में भी बातें चल रही है कि उसमें इजाफा किया जाएगा, जो कि अब तक सामने नहीं आया। अगर नेपरा में पिटीशन दायर होता है तब ये सब बात सामने आएगी, लेकिन जो गर्मियां है या जो आने वाला सीजन है, चूंकि गर्मियां शुरू है तो ये जो मौसम है ये जो बिजली सारिफीन पर ज्यादा गिरा गुजरेगा। जी शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के इमरजेंसी में अवाम के मुफ्त इलाज की मंजूरी। घरेलू मुलाजमीन के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का असूली फैसला। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा। हाजी निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मौसर रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन और अवाम के मुफ्त इलाज से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के इमरजेंसी में अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया और इसकी वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी। इसी तरह घरेलू मुलाजमीन के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का भी असूली तौर पर फैसला कर लिया है और सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन के इलाज के अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। घरेलू मुलाजमीन हेल्थ कार्ड पर भी इलाज करा सकेंगे और हेल्थ कार्ड की हद से ज्यादा अखराजात की सूरत में अदायगी जो है वो हुकूमत पंजाब करेगी। घरेलू मुलाजमीन के इलाज को यकीनी बनाने के लिए पंजाब एम्प्लॉयज सोशल अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और इस मामले पर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये अहम पेशरफ्त हुई है। सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है और इस मुकदमे से आज सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को बरी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे कबल इसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरी किया था। आज अदालत में जब केस की कार्रवाई का आगाज हुआ तो FIA ने अदालत की जानिब से पूछे गए 27 सवालात के जवाब अदालत में जमा करवा दिए। इस मौके पर मौजूद जज ने यह कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। इस मौके पर अदालत को ये बताया गया कि JIT ने इंक्वायरी की थी जिसकी सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। अदालत ने यह भी सवाल किया कि पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा गया है। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर कमरा अदालत में अदालत के सवाल पर खामोश हो गए, जिस पर अदालत ने कहा कि जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी हुई। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए है। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है और JIT ने इस हवाले से तहकीकात की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।